Okay, so assalamu alaikum everybody. Today I'll be solving O levels May June 2020 variant 1-2. This is similar to the one I've solved in the previous videos, which is variant 1-1, but some of the questions are similar and some of them are different. So before I start with this paper, I just wanted to make an announcement that I'll be starting free Zoom classes. If you have any queries, since the mini July series is starting, so if you have any queries, you can always message me. I can make another video regarding that topic, or you can contact me by commenting below this video, and I can arrange a Zoom meeting. So if you're interested, matlab O levels ka it doesn't matter. So if you have any issues, you can always message me or comment. So let's get started. So in this question it says, the diagram shows 4 pieces of apparatus that are used to measure the volume of gas or liquid. Which pieces of apparatus should always be filled to the same level? Now I mentioned this in the previous video as well, in which I solved a very similar question. So basically you can always watch these videos, the experimental videos. You can always search experimental what do we call that, apparatus. So, and you can always search burette gas syringe. Obviously you know what gas syringe and measuring cylinder are, but to differentiate between burette and pipette, you can always Google them, because I don't have the apparatus right now and it will be difficult to explain without visually showing you the apparatuses. So you can always Google and you will know the difference. But over here, as you know, गैस सिलेंडर जितना उसे खींचोगे उतना मतलब भर सकते हो आप उसको, या उतना निकाल सकते हो. ऑल राइट. सो should always be filled to the same level. नहीं, इसमें आप different levels पे fill करते हो. और obviously in measuring cylinder जो आपको grade 5 से पता है, जितना आप इसको भरोगे, obviously it's like a cup basically ना, जितना आप भरोगे उतना भरता जाएगा ये, but it is with markings and obviously not a cup. Basically cylinder होते हैं जिसमें आप measure करने के लिए चीज़ें डालते हो, ठीक है. और ब्यूरेट में देर ऑलरेडी मार्किंग्स प्रेजेंट, तो मतलब इसका मतलब यही है कि आप जितना मर्जी भर सकते हो, इतना जितना मर्जी. बट ओवर हियर देयर इज़ ओनली वन मार्किंग जो एक ही है और यहाँ तक ही भरता है वो. यू कैन ऑलवेज सर्च के हाउ इट वर्क्स. तो द आंसर इज़ डी. एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज cross out the wrong ones और आंसर आपके पास डी ही बचेगा, बिकॉज इनमें से मार्किंग्स हैं सब में. देख लो, सब में मार्किंग्स है, इसमें मार्किंग नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी क्लियर चॉइस. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज, aqueous sodium thiosulfate with acid reacts with acid to make a precipitate of sulfur. All right. Aqueous thiosulfate is this and acid is HCl. precipitate of sulfur की इसमें जो है make है, तो make का मतलब है product में आएगा, ठीक है. और precipitate है, तो precipitate यही तो gaseous है, तो solid ही होएगा, तो precipitate of sulfur. All right. Now a student investigates the effect of temperature on the rate of reaction. So वैसे generally it's not required in this question, but when temperature increases तो kinetic energy molecules की increase होएगी, क्योंकि मतलब जब solid से liquid करना हो तो temperature ही बढ़ाते हैं ना. तो जब solid के जो molecules हैं they'll gain kinetic energy, तो उसमें जो है जो the molecules will move further apart. all right. तो जब further apart move कर रहे होंगे तो उनकी collisions होंगी आपस में, and collisions होंगी तो उसका मतलब rate of reaction होगा, क्योंकि collisions का मतलब ही rate of reaction होता है. मतलब rate of reaction कब होता है, जब collisions होती हैं. Not that any of this was related to the question I just told you, because it was a concept, ठीक है.
तो the student places a piece of paper with a cross on it. This is a cross and this is a piece of paper on it below the reaction mixture as shown in the diagram. Measures the time taken for the cross to no longer be seen. मतलब मेजर टाइम टेकन करना है. मुझे अभी मैंने असल में अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ठीक है. एंड आई फिगर्ड आउट कि स्टॉप वॉच टाइम टेकन है तो स्टॉप वॉच तो चाहिए ही होगी. Repeats the experiment, repeats the reaction at different temperatures. Repeat क्यों किया उसने? For ensuring the reliability of experiment. जितने ज़्यादा दफ़ा करोगे उतना आपको एक वो पता चल जाएगा. क्या होता है वो? आई कांट रिमेंबर द वर्ड. क्या एक पता चल जाएगा, एक फ्लो पता चल जाएगा, ठीक है. कि मतलब अगर इंक्रीज़ करे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ ही हो रहा है. डिफरेंट टेम्परेचर का मतलब है कि आपको थर्मोमीटर चाहिए. थर्मोमीटर इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर द टेम्परेचर्स, ठीक है. विच एपरेटस इज नीडेड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन. तो स्टॉप क्लॉक तो चाहिए थी, बाकी हमने फिगर आउट ही नहीं किया. स्टॉप क्लॉक और थर्मोमीटर चाहिए, तो शायद थर्ड वाला हमने अभी फिगर आउट नहीं किया, तो शायद बैलेंस हो. इधर एक ही है थर्मोमीटर. आई वी नो कि स्टॉप क्लॉक भी चाहिए. तो B and D are the options जिसमें स्टॉप क्लॉक एंड थर्मोमीटर बोथ आर प्रेजेंट. सो बैलेंस चाहिए या मेजरिंग सिलेंडर चाहिए. बैलेंस में हमने तो कुछ मेजर करना भी नहीं है, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड मेजरिंग सिलेंडर में आप डालोगे और उसमें और वो रखो. बेसिकली एक ग्लास है, उसको आपने एक वाइट पेपर विद अक्रॉस रखा है, ठीक है. तो ग्लास फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है और इसके ऊपर आपने रखा है, ठीक है. सो इफ़ वो मेजरिंग सिलेंडर भी हो सकता है, बीकर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है विच इज़ ट्रांसपेरेंट बेसिकली. तो बैलेंस चाहिए नहीं तो मेजरिंग सिलेंडर ही होएगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. दिस वाज आल्सो प्रेजेंट इन द अदर वेरिएंट 1.1. तो इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि RF जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है. मतलब इसमें आपने वेरिएबल्स में बताना है कि अंडर द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट द RF ऑफ Fe+3 इज़ गिवन बाय x/y या y/x. तो देख लो RF वैल्यू जो होती है, द फॉर्मूला इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोल्यूशन. दिस इज़ द सोल्यूशन ओवर डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट. ऑलवेज मेक श्योर कि मतलब RF इज़ ऑलवेज लेस देन 1. मतलब पॉइंट्स में आती है 0 पॉइंट समथिंग में हमेशा. तो इसका मतलब ये वाला जो होएगा दैट विल बी लेसर एज़ कम्पेयर टू दिस. तभी ज़ीरो आएगा. मतलब जब छोटे वाले को बड़े में से डिवाइड करोगे तभी सिर्फ वो आएगा पॉइंट्स में, ज़ीरो पॉइंट में, ठीक है. लेस देन 1 आएगा, ठीक है. सो इट इज़ x/y. और बताना है कि कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट क्या है. प्रेसिपिटेट कौन सा फॉर्म हो रहा है? आयरन 3 ऑक्साइड. सो आयरन 3 ऑक्साइड 2 कलर्स हैं. आयरन 2 के जो होता है वो ग्रीन होता है और आयरन 3 का रेड ब्राउन होता है. सो इसमें ये या ये है और रेड ब्राउन या रेड ब्राउन है. सो द आंसर इज़ ए, जिसमें दोनों करेक्ट हैं ऑप्शंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, फॉर दिस क्वेश्चन आपको आई बी अटैचिंग अ टेबल अभी राइट नाउ. वो आपने बहुत गौर से पढ़ना है और उसको रट्टा लगाना है. बेसिकली दैट टेबल इज़ फ्रॉम A levels, लेकिन A levels वालों को गिवन होता है. तो आप लोगों ने बस उसको याद करना है बिकॉज ये प्योर रट्टा है. मतलब आप वो टेबल देखते साथ ही आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है. और अभी आप इसको पढ़ लो एंड आई बी अटैचिंग द टेबल और इसको आप कंपेयर कर लेना, ठीक है. तो ये बिल्कुल रटा है. Now question number 5. Which methods of separation require a change of state from liquid to gas? Paper chromatography में we just had a look जिसमें RF निकालनी थी. उसमें solutions ही होती हैं सिर्फ, ठीक है. और जो है filtration में सिर्फ सॉलिड होता है जो लिक्विड में से फ़िल्टर हुआ होता है. तो उसमें चेंज ऑफ स्टेट इन दोनों में से कोई भी नहीं हो रही होती. ऑन द अदर हैंड इन क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन हीटिंग इन्वॉल्व होती है. तो हीटिंग व्हेनेवर हीटिंग इज़ इन्वॉल्व तो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट ज़रा कम ही होता है.
लिक्विड से गैस में ऑन द अदर हैंड ज़रूर चेंज होएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में एक वो एवेपोरेटिंग बेसिन में वो होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। तो उसमें वो थोड़ा सा पानी भी होता है, तो व्हेन इट इज़ हीटेड द वाटर इज़ एवेपोरेटेड। और सेम गोज़ विद डिस्टिलेशन में जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इफ़ यू रिमेंबर, तो उसमें एक ऐसे करके डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है और इधर करके एक लीबिक कंडेंसर होता है, जो इधर लिक्विड है, इट इज़ हीटेड फ्रॉम हेयर, और इधर जो है वो वेपर्स जा रहे हैं, इधर कंडेंसर है जो गैस पार्टिकल्स को लिक्विड में दोबारा कंडेंस कर रहे हैं। सो इन दीज 2 and 3 चेंज ऑफ स्टेट होती है। नाउ question number 6, hydrogen sulfide and hydrogen chloride are both gases at temperature above -50 degrees। ठीक हो गया। above -50 degrees का क्या है, ये इधर 0 है, ये इधर +50 है फॉर एग्जांपल, और इधर -50 है, ठीक है। above -50 का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, विच मीन्स 40, इधर -40 है, इधर -20 है, इधर 20 है, और इधर 40 है, इधर 50 है, ठीक है। तो अगर तो इधर -60 और -40 फॉर एग्जांपल होता, तो -60 तो वैसे ही रूल आउट हो जाना था, क्योंकि अबव जा रहा है, ठीक है। हाउएवर दोनों -40 और -20 हैं इधर, तो अब इसमें तो नहीं पता चल सकता कि कौन सा है ये। अब इट सेज विच गैस विल डिफ्यूज़ मोस्ट रैपिडली। डिफ्यूजन का होती ही इस बेस पे कि कौन सी लाइटर है। जो लाइट गैस होती है वो जल्दी डिफ्यूज़ होती है। तो इधर हमने MR निकाल लिया, इसका 34 है और इसका 36.5 है, ठीक है। और नाउ विल डिफ्यूज़ मोस्ट रैपिडली, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होएगा उतनी जल्दी डिफ्यूजन होएगी, ठीक है। बिकॉज मतलब जितनी जल्दी वो गैस में कन्वर्ट होएगा ऑब्वियसली उतनी जल्दी ही डिफ्यूज़ होएगा। सो -20 इज़ क्लोज़र टू 0 बेसिकली। ऐसे देख लो, -20 इज़ क्लोज़र टू 50, जिस पे इवेपोरेट तो पक्का होना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिफ्यूज़ भी हो ही जाएगा। तो -20 इज़ क्लोज़र टू 50, हाउएवर -40 इज़ नॉट दैट क्लोज़र टू 50। तो जो है -20 पे जल्दी डिफ्यूज़ होएगी। और सिंस हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ अ लोअर मॉलिक्यूलर मास, तो D इज़ द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, the diagram shows the relative mass and relative charge relative mass and relative charge of two particles। ये particles हैं दोनों present in atoms and ions, ठीक है। -1 इसका चार्ज, दैट मीन्स इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन, और 0 जिसका चार्ज है वी नो न्यूट्रॉन है। और इफ़ अ +1 चार्ज वुड हैव बीन प्रेजेंट, तो इधर होना था प्रोटॉन, ठीक है, जो आई डोंट नो ऐसे होना था, ठीक है। और इधर प्रोटॉन्स मेंशन नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे अभी फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेल के which of these particles are present in an hydrogen atom and in a hydrogen ion। तो हाइड्रोजन एटम का 1-1 होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, देयर आर नो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। और हाइड्रोजन आयन में भी सिर्फ आयंस में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव होएगा, प्रोटॉन उधर गया है, और न्यूट्रॉन तो ऐड होता नहीं है उसमें, तो न्यूट्रॉन भी नहीं होएगा। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन, विच आयन हैज़ द मोस्ट शेल्स दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। इधर जो है Al+3 है, जिसका 13 एटॉमिक मास है, ठीक है।
तो +3 हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर 10 आ गया। 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो तो 2.8.2 बन रही है, ठीक है। मतलब ठीक है, इधर थ्री शेल्स बन रहे हैं, ठीक है। आगे चलो तो 4 बेरिलियम क्या होता है, इट इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ पहले में फिल होएगी, ठीक है। पहला शेल से एक शेल सिर्फ फिल होएगा। ओवर हियर 7 और 10 है, तो 7 बेसिकली उसका एटॉमिक मास है एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड, तो 10 हो गया। और 2.8.2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, ठीक है। इधर 16 उसका एटॉमिक नंबर था और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड, तो 18 हो गया और 2.8.8 आ गया। अब वो पूछ रहा है विच आयन हैज़ द मोस्ट शेल्स दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब जो है इसमें भी 3 शेल्स है, इसमें भी 3 शेल्स है, इसमें भी 3 शेल्स हैं। अब वी हैव टू फाइंड आउट कि ज़्यादा किस में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं बिकॉज इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी शेल में, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बोथ व्हेन सॉलिड एंड व्हेन मोल्टन। तो इधर जो है हाइड्रोकार्बन, इट इज़ कोवलेंट, जिसमें कभी कंडक्शन नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की। मेटल ऑक्साइड जो है वो आयोनिक है, ठीक है। वो उसमें सिर्फ मोल्टन में होएगी, सॉलिड में नहीं होएगी। सॉल्ट कभी कभी आयोनिक भी होता है, ठीक है। तो आयोनिक में तो सिर्फ मोल्टन में होएगी, सॉलिड में नहीं होएगी, वरना नहीं होएगी, ठीक है। तो दैट लीव्स अस विद ओनली वन चॉइस। इसमें मैंने रूल आउट किए हैं तीनों ऑप्शंस। एलॉय, ठीक है, क्योंकि एलॉय की प्रॉपर्टीज़ मुझे याद नहीं थी। तो इफ़ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग तो आपने रूल आउट करना है, ठीक है। नाउ moving on to question number 10, it says when they react together which pair of elements form an ionic compound। अब आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तब आयनिक कंपाउंड बनता है। हाउएवर कोवलेंट कंपाउंड तब बनता है जब दोनों नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, वेराज लिथियम इज़ अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल। तो सी इज़ द आंसर। सिंपल था ये बहुत ज़्यादा। 11 is how many shared electrons are there in one carbon dioxide molecule। मैंने इधर कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर दी है, इसको आप देख लें, तो इधर देख लें। और कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं बिकॉज आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ के मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स ही बनाता है जब भी बनाए, मतलब जिसके साथ भी बनाने हैं उससे कार्बन ने 4 बॉन्ड्स ही बनाने हैं, ठीक है। whether they are double bonds, whether they are triple bonds or whether it is a single bond, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 is the answer। Now moving on to question number 12, it says element X has a lattice of positive ions and a sea of electrons। ये आप लोगों ने रट्टा लगानी है मेटेलिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन, ठीक है। इट इज़ अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, ठीक है। ये मेटेलिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, तो बस है, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो आपने याद करनी है, लेकिन ओवर हियर इट सेज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ वाइब्रेशन होती है, जैसे कंडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये ठीक है। इट इज़ डिकम्पोज बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, नोप, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कहाँ से आ गया। और इट इज़ नॉट मैलिएबल, इट इज़ मैलिएबल एंड इट इज़ डक्टाइल, ठीक है। तो बी आंसर है क्या, ठीक है। आगे चलो, विच रो शोज द करेक्ट स्टेट सिम्बल्स फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टेट सिम्बल्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखो, तो कैल्शियम और
कार्बोनेट इज़ बेसिकली CO3 और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है और कैल्शियम के ऊपर वी नो के +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये होता है सॉलिड, यू नीड टू मेमोराइज दिस। यहाँ इधर ज़रूरत भी नहीं है याद करने की बिकॉज हर ऑप्शन में सॉलिड है, ठीक है। और इट सेज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक का मतलब है या तो एक्वस है या लिक्विड है, ये भी ऑप्शंस में दोनों हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? अब यू हैव अ लुक एट दिस। ओके, सो एक्वस बेसिकली सिर्फ आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं, या बेसिकली जो सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली वो सिर्फ आयोनिक, आप ना भी लिखो तो सिर्फ बेसिकली जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर एक्वस। हाउएवर सिर्फ H2O है जो सिर्फ लिक्विड है, सिर्फ H2O लिक्विड है, बाकी हर चीज़ जो भी डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेटेड जो भी होएगी दैट विल बी एक्वस, ठीक है। तो इधर से हमें पता चल गया कि या तो A है या D है, ठीक है। अब इधर आओ तो A और D की ऑप्शन सेम है, इधर भी आओ गैसेस में भी सेम है। अब H2O का फ़र्क है जो हमने पहले ही फिगर आउट कर लिया है, तो द आंसर इज़ D, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. This is pure rata. This is, you need to memorize this definition because ये P2 में भी आती है और P1 में भी आती है। ऑलराइट, P1 में आ गई आपके सामने, ठीक है। नाउ अगर आपको ये एटम या मॉलिक्यूल्स में से नहीं याद आ रहा तो एक तो रूल आउट करो ना, 1/12 होता है, 1/6 पता नहीं क्या है, 1/12 ऑन द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब इतनी याद आ जाएगी तो रट्टा अगर लगाया होगा जिस तरह मैंने लगाया था तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ फ्लोरीन एज कम्पेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर ये नहीं याद तो अभी लिख लो क्या है, एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट, एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। बस इसको याद कर लेना और इसका कोई हल नहीं है।